بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بھٹو, چیف منسٹر صاحب, گورنر صاحب, ڈاکٹر مالک صاحب, میرے ایم پی ایز, ایم این ایز, پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار, کارکن, آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آج جو یہ افتتاح کی انوگریشن کی تقریب ہے, you've joined us today. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ سیاست رہا ہے کہ ہم عوام دوست, غریب دوست سیاست کرتے ہیں. ہمارا کوشش یہ ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہیں, پسماندہ طبقات ہیں, ان کا خدمت کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت عام آدمی کو مدد کرتا ہے, طاقتور بناتا ہے, تو ویسے ہی پاکستان یا پاکستان کی معیشت کو طاقت ملتی ہے. آج کل نہ صرف بلوچستان میں, پاکستان میں, ہمارے پوری خطے میں, پوری دنیا میں بہت سے مشکلات ہیں, اور ان مشکلات کی وجہ سے معاشی مشکلات بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور وہ خدا نخواستہ یہ جو معاشی مشکلات ہیں, یہ آگے جا کے شاید کچھ معاشی بحران بڑھے اور مزید معاشی مشکلات خاص طور پہ پسماندہ علاقے کے لیے, پسماندہ طبقات کے لیے موجود ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صحت کا شعبہ ہے وہ ایسے شعبہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت علاج کی ضرورت پڑتا ہے, یا اپنے علاج کے, یا بچوں کے علاج کے, یا بزرگوں کے علاج کے. اور ہماری نظریہ کے مطابق, پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ کے مطابق, ہیلتھ کیئر از اے رائٹ ناٹ اے پریولیج. یہ آپ کا حق ہے, ہر پاکستانی کا حق ہے, ہر بلوچستان کا شہری کا حق ہے کہ ان کو مفت اور معیاری علاج ملے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی ریاست میں ایسے نظام نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ امیر ہو تو آپ کا علاج ہو سکتا ہے, آپ کا جان بچ سکتا ہے, لیکن آپ اگر غریب ہو, آپ اگر پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہو یا پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہو, آپ کے پاس وسائل نہیں ہو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے اور خدا نخواستہ جان کو کوئی نقصان ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو صحت کا پبلک سیکٹر ہے اس پہ فوکس کیا ہے. اور جب سے میں سیاست میں خود آیا ہوں تو میرا یہ پورا کوشش رہا ہے کہ ہم اپنے عوام کو مفت اور معیاری علاج کی سہولت فراہم کرے. اور وہ مفت, ہمارا کوشش یہ ہے کہ وہ مفت اور معیاری علاج ان کا ڈور سٹیپ پہ, ان کے گھر تک ہم وہ فیسلٹیز پہنچائیں. اسی سلسلے میں میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو یہ حکومت سازی کے وقت یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ جو سندھ میں ہمیں پازیٹیو ایکسپیرینس رہا ہے کچھ انٹرونشنز کے ذریعے, میں چاہ رہا تھا کہ وہی انٹرونشنز ہم بلوچستان میں شروع کریں. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی میرا I wasn't expecting کہ 2 سال کے اندر ہی اندر وزیر اعلیٰ
सरफराज बुगटी साहब और उनकी टीम मुझे इतने ज़्यादा मंसूबे का ना सिर्फ शुरू किए हैं मगर मुकम्मल किए हैं, और जो ऑन गोइंग मंसूबे हैं वो इससे भी ज़्यादा है, मगर बुगटी साहब ने मुझसे ये वादा किया है कि 5 साल बाद जब सरफराज बुगटी साहब का टर्म मुकम्मल होगा तो तब तक ये तमाम मंसूबे हम मुकम्मल करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज वैसे बुगटी साहब और काकर साहब ने मेरे लिए 20 मंसूबे का इफ्तिताह रखा था। मैंने कहा कि ऐसी करे कि मुझे बार बार बुलाए, ऐसे ना हो कि मैं एक दिन आऊं, एक दिन में आपका सेहत के 20 मंसूबे का इफ्तिताह कर लूं और फिर 2 साल बाद इंतजार आपको करना पड़े। तो हमने ऐसे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है कि आज मैं 10 मंसूबे का तकरीबन 10 मंसूबे का इफ्तिताह कर रहा हूं, 11 मंसूबे के इफ्तिताह कर रहा हूं, और फिर 9-10 मंसूबे जब ईद के बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन मुहिम के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं फौरी तौर पे वापस इधर क्वेटा आऊँगा, और जो सेकंड फेज है इन मंसूबे के वो उनका इफ्तिताह हम करेंगे। शुरू हमने आज किया था लैंड करते हुए इस पे पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस पे, और बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस पे, और जो एयर एम्बुलेंस पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस, जो एयर एम्बुलेंस सर्विस है वो पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस है, और जो रेगुलर एम्बुलेंस सर्विस की फैसिलिटीज है वो शहीद बीबी के नाम पे। तो जो एयर एम्बुलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूं अगर किसी भी सूबा का जरूरत था कि कोई एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी मौजूद हो तो बलोचिस्तान का सूबा का ये ज़रूरत था कि एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी मौजूद हो, जहाँ ये एयर एम्बुलेंस आपके दूर दराज इलाके में पहुँच सकते हैं। रेगुलर एयर स्ट्रिप हो या रेगुलर एयर स्ट्रिप ना हो, वो एयर एम्बुलेंस वो मरीज़ को तक पहुँच सकता है, और पिछा उनको क्वेटा लेकर आना पड़ेगा या कराची लेके जाना पड़ेगा, तो उनको ये इंशाअल्लाह ताला सहूलत जिसका हमने आज इफ्तिताह किया, उनको ये फैसिलिटी मिलेगा। और जो पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, इस सहूलत के बाद हमारा कनेक्टिविटी में इजाफा होगा और यहाँ के अवाम को वो रिलीफ दिया जाएगा। एयरपोर्ट के तकरीब के बाद आपका पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस और शहीद बीबी एम्बुलेंस सर्विस की इफ्तिताह के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे जो ट्रॉमा का नया हॉस्पिटल बना है क्वेटा में, उसका इफ्तिताह पे हम पहुंचे थे, और मैं बहुत ही इम्प्रेस था। ना सिर्फ आपका इतना शानदार आलमी सतह के मुताबिक मॉडर्न फैसिलिटी, ट्रॉमा फैसिलिटी इतना जल्दी मुकम्मल कर चुके हैं, मैं वहाँ के डॉक्टर्स से मिले हैं, वहाँ के नर्सेस से मिला हूँ, और बहुत ही इम्प्रेस कि पूरा बलोचिस्तान से मुख्तलिफ आपकी डिस्ट्रिक्ट से ये नौजवान आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने अवाम की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। और मैं एक डॉक्टर साहब से मिला, अब मेरा जहन से नाम आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा, वो जो कि सऊदी अरेबिया छोड़कर यहाँ आपका क्वेटा ट्रॉमा सेंटर में आकर अब खिदमत कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये वो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, वो मुहिब वतन बलोचिस्तान के शहरी हैं जो मुश्किल हालात में भी अपने अवाम की खिदमत करते हैं। और हम दावत देते हैं कि दूसरे भी इसी तरीके से अपने मुल्क आए, अपने सूबे आए और यहाँ अपने अवाम की खिदमत करें। तो ये जो ट्रॉमा सेंटर का फैसिलिटी हमने आज इफ्तिताह किया, जो कि 150 बेडेड ट्रॉमा बेडेड फैसिलिटी होगा, इसमें आईसीयू और एचटीयू के फैसिलिटीज मौजूद है। ये ना सिर्फ 100%
मुफ्त इलाज होगा इस इदारे से, मेयारी इलाज होगा इस इदारे में, मगर साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, डिजिटाइज्ड फैसिलिटीज को इस्तेमाल करके, ये बलूचिस्तान का पहला पब्लिक हॉस्पिटल में पेपरलेस फैसिलिटी है, जो कि ना सिर्फ पेशेंट्स के लिए सहूलत होगा मगर जो स्टाफ उधर काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक फैसिलिटी इंशाल्लाह ताला बनेगा, और इससे आपका सर्विस डिलीवरी पूरी पाकिस्तान के हॉस्पिटल से इंशाल्लाह ताला इसके थ्रू आप मुकाबला करेंगे। मैं बहुत खुश हूं कि इसके साथ साथ आपने आज जो आपकी बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, हम टर्शरी हेल्थ केयर के साथ साथ, इसलिए टर्शरी केयर सबसे महंगा इलाज होता है, तो हुकूमतों का कोशिश होता है सूबा सिंध का और अब सूबे बलूचिस्तान का कि टर्शरी केयर की फैसिलिटीज़ भी हम कम कीमत पे या मुफ्त इलाज के फैसिलिटीज़ बनाएं। मगर जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, जो आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर के फैसिलिटीज़ है, वो आपके हेल्थ केयर के निज़ाम के आप समझे एक बैकबोन है। तो उस सिलसिले में जहां आपकी हुकूमत 164 BHUs को, नया BHUs को ऑपरेशनलाइज आपने आज किया है, और जो ऑनलाइन इसका इफ्तिताह आपने हमसे इधर करवाया है, और ना सिर्फ हमने उन हॉस्पिटल्स को देखे मगर वो आपको इधर देख रहे थे, मैं उसको एक वेलकम स्टेप कहना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आपके BHUs, आपके BHU प्लसेस सेहत का निज़ाम का बैकबोन है, उसी के थ्रू आप बेसिक हेल्थ की सहूलियात बलूचिस्तान के अवाम को उनके डोर स्टेप तक पहुँचा सकते हैं। जो आपका फोकस इम्यूनाइजेशन ड्राइव पे रहा है, और 2 साल के अंदर जो आपका नहीं मगर जो थर्ड पार्टी के एनालिसिस हुआ है, वाकई ही काबिल तारीफ है कि जो आपका रूटीन इम्यूनाइजेशन रेट था 38% का, उसको आपने इम्प्रूव किया है। जो पोलियो का बीमारी है, अब सब जानते हैं कि पोलियो वैक्सीनेशन का मुहिम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दौर में शुरू की थी। तो मैं बहुत खुश हूं कि आपने इस मंसूबे को अहमियत दिया और 30% से लेके 50% तक अपना इम्यूनाइजेशन की शरह को लेकर आए हैं। इस पे इंशाल्लाह आप मज़ीद फोकस करेंगे। मैं जानता हूँ कि बहुत से मुश्किलात है, ख़ास तौर पे जो मुश्किलात अफ़गानिस्तान में हैं और उनका असरात पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और फिर बाकी मुल्क पे होता है। वो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट इनिशिएटिव, मगर मैं आपके ये एफर्ट को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ जो आप काम कर रहे हैं वो भी बहुत इम्प्रेसिव हैं। हमने, आप कह रहे थे कि आपकी जो शराय अमवात है वो इस वक्त ये मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उनका शराय अमवात पूरी पाकिस्तान में आपका शराय अमवात सबसे ज़्यादा है। मगर इससे पहले जिस तेज़ी से सबसे द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका नहीं था, सूबा सिंध का होता था। और आपको याद होगा कि थरपारकर में जब कहत का सूरत हाल बनता था कि वो शराय अमवात में जो फिगर्स शामिल हो जाते थे वो हमारे लिए एक बहुत क्राइसिस जैसे सूरत हाल था। एंड इट वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग infant mortality rate in पाकिस्तान। मुख्तलिफ इंटरवेंशंस के बाद, मगर मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ रहा है, हमने सूबा सिंध में वो शमराय अमवात जो पूरे मुल्क में सबसे आगे था, अब हमारा परफॉर्मेंस बाकी सूबे से बेहतर है इंटरनेशनली, आलमी सतह पे। और यही चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने जो
آپ اب باقی ملک کے مقابلے میں سب سے تیزی میں آپ کا جو شرح اموات ہے صوبہ سندھ کا وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے اب 8 ڈسٹرکٹس کے لیے بلوچستان میں یہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شروع کیا.